Hi friends, welcome to EduTap. In today's video, I will be discussing 4 basic things with you. So all those who are doing their preparation for RBI Grade B for the first time, those who are starting their preparation right now, those who are going to make their first attempt, these 4 basic things are really important. What are these 4 basic things? Pattern of the exam, eligibility for the exam, number 3 cutoffs and 4th the syllabus. ये चारों चीजें पता होनी बहुत जरूरी हैं. एग्जाम की तैयारी शुरू कर दी पर बाद में पता चला आई एम नॉट एलिजिबल. You are not acquainted with the pattern, but you still start your preparation. Your preparation will never be in line with what is required for the exam. So please listen to these 4 basic things very carefully. This will be really helpful to you. And before I start, 2 request है. पहला आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए and press the bell icon to get all the notifications and updates regularly. And second, there are many people out there who are watching this video. I know they are always skeptical कि RBI की notification आएगी या नहीं आएगी, कितने साल बाद आती है, हर साल आती है नहीं. So guys, I am going to present you some very authentic data, actual data, as in when all the exam has happened. So मैंने सिर्फ 2013 से ये data उठाया है and it is very clearly visible that starting 2013, almost every year the notifications have come and the seats also has been healthy. Most of the times it has been above 100 and near about 150. ठीक है, तो ये चीज में आप बिल्कुल भी मत रहिए नोटिफिकेशन आएगा नहीं आएगा. एवरी ईयर देयर आर लॉट ऑफ रूमर्स नोटिफिकेशन नहीं आएगा या देयर आर पीपल हु आर ऑलवेज स्पेकुलेटिंग कब आएगा. इन चीजों में पढ़ने की जरूरत नहीं है. नोटिफिकेशन कम्स एवरी ईयर. व्हाट यू नीड टू डू इज बी प्रिपेयर्ड बाय द टाइम नोटिफिकेशन इज अनाउंस्ड. ठीक है जी, चलिए. तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द पैटर्न. पैटर्न इज समथिंग रियली इंपॉर्टेंट. पैटर्न and syllabus, these are like 2 headlights of your car if you are driving somewhere. So in case you are preparing for an exam, you should be very much acquainted with the pattern and the syllabus. Pattern में अगर हम देखेंगे, RBI Grade B is conducted in 3 phases: phase 1, phase 2 and phase 3, which is interview. If I talk about phase 1 is qualifying. phase 1 के marks आपके final merit में नहीं जुड़ते हैं. phase 1 is just qualifying. You need to qualify and then you sit for phase 2. The marks for phase 2 are actually counted in your final selection. So phase 1 qualifying है. phase 1 is of 200 marks. In those 200 marks you will get 4 sections. What are those 4 sections? General awareness, है जी पहला सेक्शन. Then reasoning, English language, quantitative aptitude. ये 4 sections हैं and the number of questions from each section is written on your screen. GA 80, reasoning 60, English language 30, quantitative aptitude 30. Every question is of 1 mark. Yes, there is a negative marking also, which would be 1/4 of the total marks allotted to that question, which means basically 0.25, क्योंकि हर question 1 mark का है. Are there any sectional timings? Yes, there are sectional timings. So quant के लिए you will get 25 minutes, English 25 minutes, reasoning 45 minutes and GA 25 minutes. So these are the sectional timings. That is, you will get only this much time to attempt these sections respectively. अगर आपने GA 10 मिनट में कर ली है, doesn't mean कि the remaining 15 minutes you will be able to use in other sections. No. So there is a sectional timing. You will be able to attempt whatever questions you can attempt within only this much of time. So total marks 200 है जी. 200 questions है. Every question is of 1 mark. ठीक है. Total time 120 minutes है. There is a sectional timing also. ठीक है. बाकी qualifying है. The marks are not added in the final section. This you must be aware of. Now coming to the phase 2. Phase 2 pattern. Phase 2 में आपके 3 पेपर होते हैं and phase 2 is really something which actually decides whether you will get selected or not. phase 2 में 3 पेपर होते हैं. The marks of phase 2 are considered in the final selection. वो 3 पेपर कौन से हैं? Paper 1 is economics and social issues. I repeat, economics and social issues. It's not only economics. I'll tell you what is the difference between economics and social issues when I show you the syllabus later. Paper 2 is English writing and paper 3 is finance and management. Paper 3 is finance and management. और ये भी आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है. द मोस्ट कॉमन मिस्टेक विच पीपल डू इज दे कॉल इट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. नहीं, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट. दिस इज नॉट फाइनेंशियल मैनेजमेंट. अब इनका पैटर्न क्या है? योर पेपर 1
and paper 3, that is your ESI paper and your FM paper, they are a combination of objective and descriptive. हर पेपर आपका 100 मार्क का है, all the 3 papers are of 100 marks, लेकिन इस पेपर में और इस पेपर में, that is paper 1 and paper 3 is a combination of descriptive and objective, that is 50 marks in paper 1 and paper 3 would be objective paper and 50 marks would be descriptive paper. ठीक है जी, तो 50-50 है ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव पेपर 1 और पेपर 3 में, एंड इन ऑब्जेक्टिव पेपर यू बेसिकली गेट 30 क्वेश्चंस इन 30 मिनट्स. आपको 30 क्वेश्चंस मिलते हैं 30 मिनट्स में, वर्थ 50 मार्क्स. सो देयर आर सम क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क, सम क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स, एंड देन द डिस्क्रिप्टिव पेपर इज ऑफ 50 मार्क्स फॉर विच you get 90 minutes, and there are 4 questions to be done here, 4 descriptive questions to be done here. Actually you are given 6 questions, but you have to do only 4 questions. Out of these 4 questions, 2 are of 10 mark and 2 are of 15 marks. ठीक है, 15 2s are 30 plus 10 2s are 20. So I hope it is clear. 50 marks objective, 50 marks descriptive. For the objective paper, there would be 30 minutes, 30 questions. The questions would be combination of 1 marker and 2 marker. Descriptive paper, 50 marks. For those 50 marks, you will get 90 minutes. 90 minutes. In those 90 minutes, you would have to attempt 4 questions. 2 questions would be of 10 marks, 2 questions would be of 15 marks. Actually, to attempt 4 questions, you will be given 6 questions in the exam, so you will have a choice there. Right. So ये चॉइस हो भी सकती है. दिस इज नॉट रिटन एक्चुअली एनीवेयर. समटाइम्स दे आल्सो पुट अप अ कंपल्सरी क्वेश्चन कि जी ये 5 में से आप 3 कर लीजिए, बट 1 इज अ कंपल्सरी क्वेश्चन. देयर कैन बी समथिंग लाइक दैट आल्सो. सो पेपर 1 और पेपर 3 सेम पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव. आई हैव एक्सप्लेन्ड इट टू यू. आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड. नाउ कमिंग टू द इंग्लिश राइटिंग स्किल्स, दिस पेपर इज कंप्लीटली डिस्क्रिप्टिव. दिस इज आल्सो ऑफ 100 मार्क्स. द टाइम गिवन हियर इज 90 मिनट्स अगेन, and the number of questions that are asked here are 3. ठीक है, syllabus क्या है, इसका कोई syllabus नहीं रहता है, that I'll tell you later. Actually these 3 questions which are asked in the exam, again it is not mentioned here that these would be the only questions, but what we have seen in the last 5 years, what they're asking is essay, précis and comprehension. ठीक है जी, I hope the phase 2 pattern is very much clear to you. The total is 300 marks. और अगर हम 300 मार्क्स में से डिस्क्रिप्टिव पोर्शन देखें, दिस इज एंटायरली डिस्क्रिप्टिव. 50 मार्क्स here descriptive and 50 marks here descriptive. 200 marks worth of paper is descriptive out of 300. So you might see it as a challenge, you might see it as an opportunity, but इसका डिस्क्रिप्टिव बहुत मुश्किल नहीं आता. इट्स नॉट ऑफ यूपीएससी लेवल कि जी बहुत मुश्किल पेपर आ रहा है, बहुत पढ़ना पड़ेगा. नहीं, एटलीस्ट इन इंग्लिश एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट. आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा है, द क्वेश्चंस आर डायरेक्ट लाइक व्हाट वी यूज्ड टू गेट इन आवर बोर्ड एग्जाम्स. You can easily solve them. In DSI, yes, you need to have little bit knowledge of current affairs to attempt that descriptive paper. ठीक है, बाकी डिटेल में when I discuss the syllabus with you, I'll tell you that what is the scope of the exam. Next is phase 3, you can call it, or you can just simply call it interview, which is of 75 marks. There is also a psychometric assessment. साइकोमेट्रिक असेसमेंट के कोई मार्क्स नहीं होते हैं. साइकोमेट्रिक असेसमेंट इज बेसिकली एन असेसमेंट जहां पे वो चेक करते हैं आपकी ऑनेस्टी, आपकी कमिटमेंट. ठीक है, आप कितने ओपन हैं, लिबरल हैं. दैट इज ऑल दे चेक, दैट इज योर इनर क्वालिटीज. साइकोमेट्रिक टेस्ट एक्चुअली व्हाट आई थिंक इज अ फीडबैक टू द इंटरव्यूज. तो आप जो भी साइकोमेट्रिक टेस्ट में आंसर्स देंगे, दोज आंसर्स वुड बी गिवन टू द इंटरव्यू बोर्ड, so that again they can check whether you have answered those questions right way or you have fudged them. But anyways, psychometric test ऐसा कोई बहुत क्रिटिकल नहीं है, ऐसा अभी तक देखा गया है कि उसमें से लोगों को बाहर निकाल दिया हो. It is just a test in which you would be asked very basic questions, situation based questions. कि जी अगर आप ऑफिस में आपकी किसी टीममेट के साथ लड़ाई हो गई तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, these kind of questions. So there is no correct answer there, but you have to answer what you feel. ठीक है, but yes, interview is worth 75 marks, which is very important. और interview आजकल बहुत ज़्यादा important हो गया because it has been seen that some people are also getting marks around say
5-10 marks out of 75. So it becomes really critical, because if you are able to score just 5 or 10 out of 75, then it can be really problematic for you. ठीक है, so 75 marks for the interview. ठीक है जी, so total marks कितने हो गए हमारे? 300 for phase 2 for those 3 papers which I showed you on the previous screen, and the 75 here, so the total becomes 375. Out of these 375, the merit is made and the results are announced. So phase 2 और interview के marks को जोड़कर ही final merit list बनाई जाती है out of this 375. And interview जो है आप हिंदी में भी दे सकते हैं, इंग्लिश में भी दे सकते हैं. Lot of people ask this question, can I give interview in Hindi or should I give interview in Hindi? कोई दिक्कत नहीं है. You should always give interview in that language in which you can express yourself. In which you can express yourself. तो आप हिंदी में अगर बेहतर एक्सप्रेस कर सकते हैं, go for हिंदी language. It will never be a constraint to your selection. And the phase 2 exam also, phase 1 exam also is conducted in both the languages. तो अगर आप हिंदी मीडियम से हैं, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. Now coming on to the eligibility, guys, this is very important. Listen to it carefully, because many a times students are not clear whether I am eligible or not, and they keep wasting their time thinking that whether I am eligible or not. तो आपको सारी queries आपकी यहाँ पे आंसर होने वाली हैं eligibility से related. Eligibility in terms of age, it's pretty simple. You should be between 21 and 30 years of age. You should be between 21 and 30 years of age. What does it mean? It means you should have already attained the age of 21. That is, you should be 21 years plus 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, whatever it is. But you can't be 20 years plus 364 days. No, you should have attained the age of 21, and you should not have crossed the age of 30 years. Suppose आपकी age है 30 years plus 7 days. 30 years plus 7 days, then you are not eligible. आप अपने आप को बोलेंगे तो मैं 30 साल का हूं, क्योंकि अभी आप 31 के नहीं हुए हैं. But the moment you cross 30, you are 30 years plus something, you will not be eligible. ठीक है? तो age should be above 21 and should not have crossed 30. Pretty clear? और age कैसे कैलकुलेट की जाती है, किस डेट पे कैलकुलेट की जाती है? Normally, the month in which notification comes, the first of that month is counted as the cut off date. वो नोटिफिकेशन में मेंशन रहता है कि आपकी एज किस कट ऑफ डेट के अनुसार कैलकुलेट की जाएगी. सपोज कीजिए नोटिफिकेशन आता है दिसंबर में, 15th दिसंबर को. सो नॉर्मली दे विल मेंशन दैट योर एज शुड बी बिटवीन 21 and 30 years as of 1st दिसंबर. अगर नोटिफिकेशन आता है सपोज कीजिए मार्च में, 9th मार्च को आता है, सो दे माइट मेंशन दैट योर एज शुड बी बिटवीन 21 and 30 years as of 1st March. So normally this cutoff date is kept as the first of every month, but ये RBI का prerogative है. What is the cutoff date decided by them? There is no rule. They can change it anytime. But this is what is seen as a pattern in many of the last notifications. ठीक है जी. तो ये point मैंने clear कर दिया है. What is the cutoff date for calculating age? Now, are there any relaxations? Are there any relaxations for unreserved or reserved categories? Yes. तो पहले मैंने आपको जो 21 to 30 years की एज बताई है, दिस इज फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी. ठीक है. बट देन देयर रिलैक्सेशंस फॉर रिजर्व कैटेगरी. SC ST they get a relaxation of 5 years. OBCs they get a relaxation of 3 years. ठीक है. Then if you are PWBD you will get a relaxation of 10 years. And further if there is a combination, आप PWBD भी हैं और SC ST भी हैं, then it would be 10 plus 5, that is 15 years. And if you are PWBD, you are also OBC, then you will get a relaxation of 10 plus 3, that is 13 years. Right? Apart from that, if you have been ex-employee of any banking institution and your services were terminated due to reasons such as economic recession or something, then also you get a relaxation of 5 years. And if you have been retrenched from any government office, after serving at least for 1 year, then you will get a relaxation of 5 years. So in both these cases, you will get a relaxation of 5 years. Either the bank was liquidated and you were an ex-employee of that bank, or you were a government servant. You were not a banker, but you were a government servant, and you served there for at least 1 year, and then you were retrenched. Then also you will be given a relaxation of 5 years.
Now this is very very important. Apart from the relaxations I discussed with you in the last slide. Now any person who is working as an officer, now this is applicable for anybody. Here there is no reserved unreserved. If a candidate is having an experience of an officer, not at a clerical level, at an officer level, in a commercial bank or a financial institution, तो वो commercial bank या financial institution होना चाहिए, like say SBI, LIC, it can't be CBI, that's not a financial institution. Commercial bank or a financial institution in the public sector, ये बहुत important है. So by public sector obviously we mean SBI, Punjab National Bank, all these are public sector banks, right? So वो public sector में होना चाहिए. But once RTI was raised with RBI, they mentioned even people in ICICI or HDFC are eligible for relaxation under this rule. So I'm not clear what is their stand on this. You better email them and get this clarified. But as per the notification, you must be an officer working in a commercial bank or a public financial institution in the public sector. ठीक है जी? And the relaxation that will be given to you would be equivalent to the number of years of experience you have had in that bank or the financial institution, but subject to maximum of 33 years. तो सपोज कीजिए आपका बैंक में 5 साल का एक्सपीरियंस है. विल यू गेट 5 years ऑफ रिलैक्सेशन? नो, आपको मैक्सिमम 3 ही साल का मिलेगा, क्योंकि 30 और 33 में 3 का डिफरेंस है. तो अगर आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, आपको 1 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा. इफ यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ 2 years, यू विल गेट 2 years रिलैक्सेशन. 3 है तो 3 का मिल सकता है, लेकिन 3 से ऊपर नहीं मिलेगा. एंड मोर ओवर द प्रोबेशनरी पीरियड इज नॉट काउंटेड. तो अगर आपका बैंक में 3 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल प्रोबेशनरी पीरियड है, सो अल्टीमेटली इट वुड बी काउंटेड एज अ 2 years एक्सपीरियंस एंड यू विल गेट रिलैक्सेशन ऑफ ओनली 2 years. ठीक है जी? तो प्रोबेशन नहीं इंक्लूड होगा, मैक्सिमम 33 तक ही होगा. ऐसा नहीं है मुझे 10 साल का एक्सपीरियंस है तो मैं 40 साल तक दे सकता हूं. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन रिलैक्सेशन बी कम्युलेटिव? ये बहुत कॉमन क्वेरी है जी. मैं SC भी हूं और मुझे बैंक में एक्सपीरियंस भी है. कैन आई गेट अ फर्दर रिलैक्सेशन आफ्टर 35 से अप टू 38 years? नो, दिस इज नॉट कम्युलेटिव. आप कोई भी एक ले लीजिए. सो ऑब्वियसली दिस इज मोर और लेस वैलिड फॉर पीपल इन द जनरल कैटेगरी, बिकॉज people under SC ST category are already having a relaxation of 5 years which make them eligible till 35 years. So why would they choose this? ठीक है जी? ये क्लियर है, आई होप. नाउ एलिजिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ क्वालिफिकेशन, हमने अभी एज डिस्कस किया, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन. सबसे पहले तो please try to understand, Reserve Bank of India is very clear. They do not want people who are kind of specialist, कि हमें कॉमर्स, फाइनेंस या फिर इकोनॉमिक स्ट्रीम के बंदे चाहिए. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज वेरी क्लियर. दे आर वेरी क्लियरली मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन कि आपकी ग्रेजुएशन किसी भी फील्ड में हो, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द एग्जाम. एंड every year I would say that 50% or more than 50% of the people do not belong to commerce or finance field or economics field who clear this paper. तो बहुत सारे लोग हैं जी who think that मेरा तो कॉमर्स नहीं है बैकग्राउंड, फाइनेंस नहीं है, इकोनॉमिक्स नहीं है, हाउ विल आई क्लियर दिस एग्जाम? डोंट वरी, योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल नेवर बी एन इम्पेडिमेंट इन योर सिलेक्शन, प्रोवाइडेड यू स्टडी फॉर योर एग्जाम. आप मेहनत करें, पढ़े, है ना? ऐसा नहीं है कि डिग्री भी नहीं है, पढ़ना भी नहीं है, तब भी हो जाए, तब तो नहीं होगा, ऑब्वियस है. तो क्वालिफिकेशन में बहुत क्लियरली लिखा है दैट ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन with minimum 60% marks or 50% if you are SC ST PWBD. यहाँ पे OBCs को रिलैक्सेशंस नहीं है, वेरी क्लियरली यहाँ पे मेंशन्ड है. सिर्फ 50% वाला क्राइटेरिया is applicable for SC ST and PWBD. Otherwise, if you are from general category or OBC category, you require a minimum of 60% marks. This is in graduation, but then there is an or. Or is the keyword here. अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है किसी भी डिसिप्लिन में, तब आपको जो मार्क्स चाहिए वो है 55% मार्क्स फॉर जनरल कैटेगरी एंड ओबीसी एंड जस्ट पास मार्क्स फॉर SC ST एंड PWBD एप्लीकेंट्स. तो क्या मतलब है? देखिए, पहले तो यहाँ पे और है. सपोज कीजिए यू हैव डन अ ग्रेजुएशन बट आपके यहाँ पे 58% मार्क्स हैं,
यू आर नॉट एलिजिबल इन दैट सेंस। बट आपने साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखा है और पोस्ट ग्रेजुएशन में आपके से 57% मार्क्स है, so you are eligible as per your post grad, you are eligible as per your post grad, और आप ओवरऑल भी एलिजिबल हो गए क्योंकि यहाँ पे और है। तो या तो आपके ग्रेजुएशन में 60% हो इन जनरल और ओबीसी, या पोस्ट ग्रेड में 55% से ऊपर हो, आप दोनों सिनेरियोज में एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है जी, क्योंकि और है, कोई भी एक कंडीशन फुलफिल हुई तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। उसके अलावा दे वेरी क्लियरली मेंशन्ड, ठीक है, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, यू आर एलिजिबल इफ यू हैव डन एनी diploma which is equivalent to post grad. For example, many people do a PGDM, that is an MBA, then also you are eligible. And then they have also mentioned that some people do technical courses after 12th which are at least of 3 years in duration and which is equivalent to technical graduation, then also you are eligible. तो ये आप देख सकते हैं, तीनों उन्होंने बहुत क्लैरिटी से बताया गया है तीनों कंडीशंस को। अगर आपने डिस्टेंस लर्निंग से भी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है, देन ऑल्सो यू आर एलिजिबल। आई होप ऑल द सिनेरियोज हैव बीन कवर्ड हियर एंड यू विल हैव क्लैरिटी वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट विद रिस्पेक्ट टू योर क्वालिफिकेशन और एज। अब एक चीज और है जी, हाउ टू कन्वर्ट सीजीपीए टू परसेंटेज मार्क्स, क्योंकि जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है दैट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मार्क्स, but many a times your college will give you CGPA. How to convert? So they have mentioned a pretty easy scenario for that. Either your college or university will mention that what is the conversion criteria, apply that and see what is your percentage marks. If no criteria has been mentioned by college or university, then you need to apply this. 6.75 is equivalent to 60%, 6.25 55% and 5.75 50%. ठीक है जी, तो अब ये क्राइटेरिया अप्लाई करके यू कैन कन्वर्ट योर सीजीपीए इनटू परसेंटेज, बट दिस शैल ओनली बी अप्लाइड इफ योर कॉलेज और यूनिवर्सिटी डज नॉट प्रोवाइड्स एनी क्राइटेरिया टू कन्वर्ट इट। इफ अ क्राइटेरिया इज प्रोवाइडेड बाय देम, देन यू हैव टू यूज दैट क्राइटेरिया, अदरवाइज दिस क्राइटेरिया। क्लियर? नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, in number of attempts, first of all, the number of attempts are only limited to the people in the unreserved category, that is the journal category, and the maximum number of attempts that they can give is 6 times. The maximum number of attempts that they can give is 6 times, but the keyword here is appeared. आपने फॉर्म भरा, आप गए नहीं, that would not be counted as an attempt. तो ये बहुत कॉमन क्वेरी है, सर मैंने फॉर्म भरा था पर मैं गया नहीं, would it be counted as an attempt? नहीं है, you should have appeared, that would be counted as an attempt. ठीक है, और ये नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स वाला क्राइटेरिया एससी, एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूबीडी पे नहीं लगता है, सिर्फ जनरल कैटेगरी पे द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स हैव बीन लिमिटेड टू 6। अब कट ऑफ्स पे आते हैं, पैटर्न पता चल गया है, एलिजिबिलिटी पता चल गई है, भैया मुझे समझ आ गया क्या करना है। आई नो द पैटर्न, आई कैन प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, आई नो आई एम एलिजिबल, मुझे मार्क्स कितने लाने हैं, कट ऑफ्स कितनी जाती हैं। सबसे पहले फेज 1 की कट ऑफ्स की बात करते हैं, which is qualifying paper, as I already told you. आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखेंगे ये ओवरऑल कट ऑफ्स हैं स्टार्टिंग 2016 टिल 2021। मैंने ओवरऑल कट ऑफ्स को समराइज किया है। इन 2016 the overall cutoff was 98.5, in 2017 it was 78, then 105, 122 and then 66.75। आप देख रहे हैं कट ऑफ्स काफी वेरी कर रहे हैं, 98 से 78, फिर 105, फिर 122 और फिर एकदम 66। देख के तो लगता है पेटीएम का शेयर प्राइस, बट नहीं, ये एक्चुअल में कट ऑफ्स हैं। नाउ व्हाई द कट ऑफ्स आर फ्लक्चुएटिंग सो मच? It's not just that the competition is increasing or decreasing. The reason for so much fluctuation in the cutoffs is the varied difficulty level of the paper. जो आपका phase 1 आता है, कभी बहुत आसान आ जाता है, cutoffs suddenly go up. कभी बहुत ज़्यादा मुश्किल आ जाता है, cutoffs go down. And this is what happened in 2021. You can see the cutoffs in 2019 were 122. Here they were 66.75. So this is almost like half. So suddenly cutoffs half हो गई। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल क्वेश्चन पेपर आया होगा। And in fact it was difficult. In fact it was difficult and it was a mental blow to the students. ठीक है, तो इन्फ्रेंस इससे यही निकलता है गाइस। मैं एक सिंपल चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग एक कट ऑफ लेके चलते हैं कि मुझे इस एग्जाम में 100 लाने हैं, मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, बट दैट डजंट वर्क आउट दैट वे।
You have to attempt mocks of very difficulty levels to learn that how to adjust in papers with very difficulty levels. आप कोई टारगेट स्कोर लेके चलेंगे तो अगर पेपर बहुत आसान आ गया, कट ऑफ टारगेट स्कोर के ऊपर जा सकता है, पेपर बहुत मुश्किल आ गया, कट ऑफ इतना नीचे जाएगा बट आप रियलाइज नहीं कर पाएंगे और आप तुक्के लगाना शुरू कर देंगे. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लर्न टू एडजस्ट टू द पेपर्स ऑफ वेरी डिफिकल्टी लेवल्स, जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं. दिस इज अ वेरी कॉमन मिस्टेक. Now coming on to the cutoffs for phase 2, again there are some very important observations. Now here this line will basically tell you the cutoffs for interview, that is how much marks you are required to get an interview call. But in this line these are the final cutoffs. These are the final cutoffs that would have made you selected. तो यहाँ पे आप देखेंगे डिफरेंस ऑलमोस्ट 50 है बिटवीन द कट ऑफ फॉर इंटरव्यू एंड द फाइनल कट ऑफ. यहाँ पे भी 50 है, यहाँ पे 47 है, यहाँ पे 45 है और यहाँ पे 65 के करीब है. तो यहाँ तक तो जो इंटरव्यू के मार्क्स थे वो 50 होते थे. 2021 में द इंटरव्यू मार्क्स वर इंक्रीज टू 75. नाउ द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज, सपोज कीजिए आपके यहाँ पे 177 मार्क्स आ गए एंड यू वर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू. यू वर कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू, यू आर रियली हैप्पी कि इंटरव्यू कॉल आ गई, इस बार तो शायद क्लियर हो जाए. बट ट्रस्ट मी, आपको सिर्फ मार्जिन पे इंटरव्यू कॉल आई है. टोटल कट ऑफ 225, मतलब आपको अगर यहां पे पहुंचना है आपको 50 मार्क्स चाहिए. इंटरव्यू 50 मार्क्स का है. इज इट पॉसिबल टू गेट 50 मार्क्स आउट ऑफ 50 इन इंटरव्यू? ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल. सो ये एक बहुत मिसकंसेप्शन है कि इस बार बस 2 नंबर और आ जाते तो मुझे इंटरव्यू कॉल आ जाती, 1 नंबर और आ जाता तो शायद मुझे भी इंटरव्यू कॉल आ जाती. भैया वो 1 नंबर 2 नंबर लेके देयर वुड नॉट हैव बीन एनी बेनिफिट टू यू. यस, यू माइट हैव गॉट एन इंटरव्यू एक्सपीरियंस बट यू वर नेवर इन द रेस. तो हमें सिर्फ ये नहीं टारगेट करना है कि आई शुड गेट एन इंटरव्यू कॉल. मुझे ये टारगेट करना है कि आई शुड गेट दोस मार्क्स व्हिच वुड इन फैक्ट बी एटलीस्ट 20-25 मार्क्स हायर देन द इंटरव्यू कट ऑफ. तभी मेरा टोटल जाके इतना बनेगा ताकि मैं फाइनल कट ऑफ क्लियर कर पाऊंगा. ठीक है, ये पहली लर्निंग है जो आपको इंप्लाई करनी है. सेकंड चीज मैं कट ऑफ से रिलेटेड आपको यही बताना चाहूंगा. देखिए ओवरऑल जो कट ऑफ्स हैं 252, दिस इज आउट ऑफ 375, 300 प्लस 75, 3 पेपर्स. और यहाँ पे ऑल दीज कट ऑफ्स आर आउट ऑफ 350. ये जो सारी कट ऑफ्स हैं ये 350 से हैं क्योंकि तब इंटरव्यू के 50 मार्क्स होते थे. Now the marks, the cutoffs here, 238, 248, 245, this is almost like 67 to 70% of the total marks. 70% मार्क्स चाहिए आपको पेपर क्लियर करने के लिए. इससे एक चीज साफ है, पेपर बहुत मुश्किल नहीं है. अगर कट ऑफ 70% जा रही है, आईआईटी में कट ऑफ कितनी जाती है? 50%. यहाँ पे 70% जा रही है, which shows that the paper is not tough. So all that हुल्लाबू कि जी फाइनेंस इकोनॉमिक्स बहुत मुश्किल है, हाई लेवल है, नहीं है. ये सब्जेक्ट्स मुश्किल हैं बट फॉर दोज हु आर स्टडीइंग देम फॉर पीएचडी, एमफिल, एमएससी, सीएफए, एमबीए, द अमाउंट of preparation, the level of preparation in finance and economics that you require to clear RBI grade B is not that deep. अगर आप superficial level पे भी basic knowledge ले लें but with conceptual understanding you can score this 70% marks. हाँ, इतने आसान भी नहीं है. मार्क्स लोगों के ज्यादा आ रहे हैं क्योंकि पेपर आसान है बट कंपटीशन भी बहुत है. तो आप बहुत मुश्किल में नहीं आएंगे पढ़ते हुए, पर आपको मेहनत बहुत करनी पड़ेगी क्योंकि देयर वुड बी अ फाइट फॉर ईच मार्क इन द एग्जाम. तभी आपका टोटल जाके कहीं पे इतना बनेगा. ठीक है, अब जल्दी जल्दी सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं. फेज 2 का सिलेबस आपको दिया हुआ है नोटिफिकेशन में, एवरी ईयर इट इज देयर. तो मैं पहले फेज 1 का डिस्कस कर लेता हूं. ठीक है, तो फेज 1 का सिलेबस यू विल नॉट फाइंड इन द नोटिफिकेशन. इन द नोटिफिकेशन इट इज सिंपली रिटन that in say quant, reasoning, English and GA that there would be questions from these sections. They have not mentioned anything from the syllabus, but these are the topics that we have analyzed from the previous year papers that are actually asked in your exam. तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. ठीक है, ये आप वीडियो पॉज करके इनको लिख लीजिए. Here you would be getting to know that what are the topics that are asked in quant, reasoning or English.
ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे. You can get only these topics by analyzing the previous year papers which we have done for the past 5 years. उसी को एनालाइज कर कर हमने ये टॉपिक्स निकाले हैं. सो दिस इज अ गोल्ड माइन फॉर यू. इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है. बहुत सारे टॉपिक्स इसमें नहीं आते हैं. सम पीपल डू दिस कॉमन मिस्टेक, जैसे मिरर इमेजेस हो गया. बहुत सारे टॉपिक्स हैं क्वांट रीजनिंग में विच आर आस्क्ड इन एसएससी एंड रेलवेज, यहाँ पे नहीं पूछे जाते हैं. दीज आर द ओनली टॉपिक्स दैट यू नीड टू प्रिपेयर फॉर. तो इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है. अब क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया. नाउ आई टेल यू अबाउट जीए. GA is something very critical to your selection or qualifying phase 1 because it is of 80 marks and it is very scoring. As in within 25 minutes you can easily score 80 marks. और obviously 80 में से 80 लाने मुश्किल होंगे. You can at least score say 60-65 if you are well prepared, if you are thoroughly prepared. तो अगर इस 80 का ब्रेकअप करें, static GA is 10 to 15 marks. Static GA मैं बताऊंगा क्या होती है. Current GA are 60 to 65 marks. स्टैटिक जीए में क्या आता है जी. स्टैटिक जीए में दे विल आस्क यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि ये नेशनल पार्क कहाँ है, ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है, दिस फोक डांस बिलोंग टू विच स्टेट, वेयर इज दिस न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट लोकेटेड, ठीक है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ से वर्ल्ड बैंक. दे विल आस्क यू सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू स्टैटिक नॉलेज. दिस इज कॉल्ड स्टैटिक जीए. ये 10 से 15 मार्क की पूछी जाती है. नो पीपल कम टू अस, दे आस्क सर स्टैटिक जीए तो बहुत वास्ट है, इतने डैम्स हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं, नेशनल पार्क्स हैं, इतने रीजनल फेस्टिवल्स हैं, फॉक डांसेस हैं, डैम्स हैं, रिवर्स हैं, सारे कैसे याद रखें. भैया याद नहीं रखना है. एक चीज याद रखना जो बता रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए स्टैटिक जीए की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी. व्हाट इज दैट थिंग? स्टैटिक जीए इज बेस्ड अपॉन करंट अफेयर्स. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? कि स्टैटिक जीए में वही पूछा जाता है जो करंट अफेयर्स में न्यूज में होता है. सपोज कीजिए किसी लेक को हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया. इन 2021 व्हाट हैपेंड वाज वन लेक वाज एडेड इन द हेरिटेज साइट. नाउ द क्वेश्चन इन द एग्जाम वाज नॉट दैट कि किस लेक को हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है, देन इट वुड हैव बीन अ करंट अफेयर्स क्वेश्चन. रादर द क्वेश्चन वाज दैट दिस लेक इज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट. ये क्वेश्चन स्टैटिक जीए का है, लेकिन आया क्यों? क्योंकि इससे रिलेटेड कोई इवेंट हुआ था. सपोज कीजिए ऐसे ही किसी डैम के बनने पर या किसी रिवर को डिस्ट्रॉय करने के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो क्वेश्चन आ सकता है ये रिवर किस स्टेट में लोकेटेड है. किसी कंट्री में वॉर हो रहा है, उस कंट्री की करेंसी पूछ सकते हैं. सो द थिंग्स विच आर इन न्यूज, उससे रिलेटेड स्टैटिक जीए पूछी जाती है. इसको नोट कर लीजिए, कोई नहीं बताता है, मैं ही बता रहा हूं आपको, ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट इज करंट जीए विच इज 60 to 65 मार्क्स. ठीक है. करंट जीए में क्या पूछते हैं? बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस आती है जी 20 मार्क्स की. रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स आती हैं आपकी अप्रॉक्स 15 मार्क्स की. एंड अदर नॉर्मल करंट अफेयर्स आते हैं 30 मार्क्स के. बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस में व्हाट डू दे आस्क? द मोस्ट कॉमन थिंग, द मोस्ट प्रोमिनेंट थिंग दैट यू विल फाइंड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस इज आरबीआई नोटिफिकेशंस, रिपोर्ट्स एंड प्रेस रिलीजेस. आरबीआई की जितनी भी रिपोर्ट्स एंड नोटिफिकेशन, द मैक्सिमम क्वेश्चंस इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, almost say 10 marks out of these 20 marks will be asked from here. Apart from that, किसी बैंक ने कोई ऐप लॉन्च की है, किसी दो बैंक्स के बीच में कोई मर्जर हुआ है, यूनियन बजट या इकोनॉमिक सर्वे में से पूछ लेंगे. Any public sector bank has launched any initiative or they have attained any milestone, that can be asked. ठीक है. बाकी आरबीआई के अलावा सेबी की कोई न्यूज है, कोई रेगुलेशन है बहुत इंपॉर्टेंट विच इज इन न्यूज, दैट कैन आल्सो बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 20 मार्क्स. देन रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स. सो जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स हैं फॉर द पास्ट 5 to 6 months, वो एग्जाम से 5-6 महीने पहले जो भी रिपोर्ट्स आई हैं वो आपको पता होनी चाहिए. ठीक है. तो ये कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो रिपोर्ट्स में से आए हैं. इसी तरह ये स्कीम्स भी हैं जो पूछी गई हैं एग्जाम्स में. Now again, these schemes are not the schemes which were launched before your exam. ऐसा नहीं होता है. ये schemes न्यूज में होती हैं. Suppose PM Kisan was, say, I'm just assuming, I don't know the exact year, it was launched in say 2015. It was launched in 2015. Now why it would be asked in 2021? Because in 2021 also there might be some initiative, there might be some news on PM Kisan. So all the schemes which are old but are still in news, in media, they can be asked in your
एग्जाम अंडर रिपोर्ट्स एंड स्कीम्स। तो ये अराउंड 15 मार्क्स का आता है जी, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमें अच्छे से करना है। और जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं, ऐसा नहीं है आपको रैंडम रिपोर्ट्स पढ़नी है, आईटी इंडस्ट्री पे रिपोर्ट आई है, मीडिया इंडस्ट्री पे रिपोर्ट आई है, टेलीकॉम इंडस्ट्री पे रिपोर्ट आई है, नहीं। यू हैव टू रीड ओनली दोज रिपोर्ट्स विच आर रिलेटेड टू योर सिलेबस। आपके सिलेबस में पॉवर्टी है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इकोनॉमी है, इनोवेशन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, इससे रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आए, आपके सिलेबस से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट आए, वो आपको पढ़नी है। सिलेबस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका प्रिंट आउट लेकर आप अपनी दीवार पे चिपका ले, सुबह उठते ही उसको जरूर देखें, ठीक है। When you map the reports with your syllabus, almost 80% of the reports will get filtered out and you will be left only with the rest 20% which you are required to read. बाकी अदर करंट अफेयर्स में जो भी हमारे आसपास हो रहा है, इट माइट नॉट बी रिलेटेड टू सिलेबस, ठीक है। कोई बुक लॉन्च की, ठीक है, स्पोर्ट्स में हु इज द विनर, हु इज द लूजर, व्हाट हैज बीन द डिफरेंट वेन्यूज ऑफ स्पोर्ट्स। ओलंपिक गेम्स होते हैं तो ओलंपिक गेम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन होता है तो ऑस्ट्रेलियन ओपन के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सो व्हाटएवर इज करंटली बीइंग हेल्ड इन स्पोर्ट्स, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, इज गवर्नमेंट हैज entered into any partnership or any alliance with any industry, any organization in the corporate sector, any international organization like World Bank, UNESCO, UNICEF, वो भी न्यूज में रहता है। थीम्स ऑफ इंपॉर्टेंट डेज, बहुत सारे डेज आते हैं, एनवायरनमेंट डे, चिल्ड्रंस डे, उनके क्या थीम्स रहते हैं उस पर्टिकुलर ईयर में, वो भी पूछ सकते हैं। साइंस एंड टेक्स रिलेटेड पूछ सकते हैं जी। पर्सन इन न्यूज, किसी को कोई अवार्ड मिला हो, बुकर प्राइज मिला हो, अपॉइंटमेंट हुई हो किसी की, स्पेशली टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक, यूनिसेफ, यूनेस्को, ऑबिचुरीज, कोई मरा हो उसके बारे में। देन एनी समिट, कॉन्फ्रेंसेस हो, वो पूछ लेते हैं। डिफेंस, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और इक्विपमेंट, इंडिया कीप्स बाइंग इक्विपमेंट्स फॉर डिफरेंट कंट्रीज, उसके बारे में पूछ सकते हैं। कोई साइक्लोन या हरिकेन आया हो कहां पे, उसके बारे में पूछ सकते हैं। If government has set up any logistic park or any manufacturing hub, something like that, गवर्नमेंट करती रहती है ना, गुजरात में कुछ सेटअप कर दिया, राजस्थान में कुछ सेटअप कर दिया, that can be asked. कुछ फेमस अवार्ड्स, नोबेल प्राइज, पीस प्राइज किसको मिला, क्यों दिया जाता है, उसके बारे में पूछ सकते हैं। Then any milestones attained by the government or by public sector banks or by RBI or by any big corporate organization like Infosys, HCL, Reliance, etc., etc. Then गवर्नमेंट ने कोई स्पेशल बॉडी लॉन्च की, कोई स्पेशल कोर्सेज लॉन्च किए, जैसे कि यूथ को स्किल करने के लिए कोई कोर्स लॉन्च किया, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्च किया कि जी 4000 किलोमीटर रोड बना रहे हैं। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। दीज आर द एरियाज, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। ये जितने एरियाज हैं इनको याद कर लो, जब न्यूज पढ़ो इनसे मैप करो, अगर मैप हो रही है पढ़ लो, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा इन अदर करंट अफेयर्स। बट ये सिर्फ 30 मार्क के हैं, बाकी मैं आपको बता चुका हूं। 15 मार्क्स की रिपोर्ट्स, 20 मार्क का बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस और 10 से 15 मार्क्स की स्टैटिक जीए। ठीक है गाइस, अभी फेज 2 के सिलेबस में आते हैं। फेज 2 का सिलेबस ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, आई विल नॉट इलेबोरेट मच ऑन दैट, ठीक है। थोड़ा थोड़ा मैं बता देता हूं, बाकी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो आपको ये पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर अपने पास रख सकते हैं। यू कैन सी द सिलेबस फ्रॉम देयर। अगर ईएसआई का सिलेबस देखें तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स: ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इंडियन इकोनॉमी, ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल स्ट्रक्चर इंडिया। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? जो भी हमारे आसपास सोशल इश्यूज हैं, पॉवर्टी, हेल्थ, एजुकेशन, माइग्रेशन, अर्बनाइजेशन, ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, वो सारा चीज हमारी यहाँ पे आ जाती है, ठीक है। एंड व्हेन इट कम्स टू ESI, this is the social issues part. The last part is the social issues part. The first 3 are economics. The first 3 are economics. और ESI में in the objective part ज्यादा questions आपके schemes and reports में से रहते हैं। Theoretical question नहीं आते कि जी inflation क्या है। Question आएगा कि इस साल इंडिया में कितना inflation रहा। So all the questions in objective part of ESI are more or less related to the current affairs and mainly to the reports and schemes which are in news or which have been launched just say 8 to 9 months before your exam, ठीक है। बाकी इकोनॉमिक्स सुनने में बहुत बड़ा लगता है, बहुत भारी सब्जेक्ट है, पर आपको उतना डेप्थ में नहीं पढ़ना है। आई वुड जस्ट रिकमेंड 5 चैप्टर्स फॉर यू टू रीड इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव।
लिख लीजिए मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर आप ये 5 चैप्टर्स को कर लेंगे, फॉर ऑब्जेक्टिव यू आर डन। For descriptive, yes, you need to go through all the chapters because in descriptive they can ask you anything. So at least you should have some points ready with you so that even if you don't know the exact answer, you can at least scribble something. ठीक है? तो ESI में स्टैटिक पार्ट ज्यादा नहीं पढ़ना है, करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस करना है, एंड टू डेवलप दैट इंटेलेक्चुअल एबिलिटी टू राइट डिस्क्रिप्टिव आंसर्स यू नीड टू रीड लॉट ऑफ एडिटोरियल्स इन द न्यूज़पेपर। दैट्स इट। डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, एज आई टोल्ड यू अगेन, लोग ज्यादा तैयारी नहीं करते हैं इसके, बट दैट इज समथिंग आई डू नॉट एग्री। दिस इज वर्थ 100 मार्क्स, सेम एज अदर पेपर्स, and it is very easy. If you keep practicing on descriptive English for say half an hour daily, I think you can easily score above 70. Descriptive English में there are 3 questions, though this is not mentioned in your notification, but normally if we see the past year papers, every time these 3 questions have been asked: essay, précis and reading comprehension. ऐसे आपके बेसिकली 4 तरह के आते हैं, 4-5 ऐसेज होते हैं, आपको एक लिखना आता है। एक ऐसे जनरली यू विल बी गिवन ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंस टॉपिक, then one on technology or internet, for example use of technology in communication, how social media is affecting your lives, ठीक है। then एक abstract topic भी दे दिया जाता है कभी कभी, art and music, abstract है, कुछ भी लिखो, ठीक है। then social issues, poverty, health, education, उसके ऊपर भी आपको एक टॉपिक दिया जाता है। तो ये 3-4 टॉपिक आपको दिए जाते हैं from which you have to write one essay. then there is a précis, generally they pick up an article from the leading newspapers, कोई भी न्यूज़पेपर में से आर्टिकल उठा के आपको दे देंगे जिसके आपको प्रेसी मतलब समराइज फॉर्म लिखनी होगी। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको पता ही क्या होता है, 5 क्वेश्चन आते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे, ठीक है, जो आपको अटेम्प्ट करने होते हैं। सो दिस इज अबाउट डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, नथिंग मच टू वरी, जस्ट प्रैक्टिस, लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस, लर्न द रूल्स एंड प्रैक्टिस। कमिंग टू द FM पार्ट, सो मैनेजमेंट एंड फाइनेंस, बेसिकली दीज आर 2 सब्जेक्ट्स, मैनेजमेंट एंड फाइनेंस। मैनेजमेंट में देखें तो 3 एरियाज हैं। फर्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, विच इज मेनली योर पर्सनैलिटी, परसेप्शन, मोटिवेशन, लीडरशिप, इमोशनल इंटेलिजेंस, कॉन्फ्लिक्ट, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, सारा ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है, ठीक है। एंड द फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जिसमें दे विल टेल यू व्हाट आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एंड व्हाट आर द डिफरेंट रोल्स इन मैनेजमेंट, ये आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। दिस इज फर्स्ट एरिया। Then OB, जो मैंने आपको ये बताया, ये सारा है। इनफैक्ट कम्युनिकेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ OB। एंड द थर्ड पार्ट इज एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये थोड़ा अलग है, ना ही ये OB में आता है ना ही मैनेजमेंट में आता है। दिस इज अ सेपरेट फील्ड ऑल टुगेदर, एथिक्स एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस। ये आपको अच्छे से पढ़ने हैं, ठीक है। मैनेजमेंट में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत डायरेक्ट आते हैं, ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस के सिलेबस देखें, अंडर फाइनेंस again the syllabus is divided into 3 modules. Financial system, here basically they want to test you upon your knowledge related to financial institutions in India. RBI एक financial institution है जिसके बारे में आपको अच्छे से पता होना चाहिए। Apart from that there are other regulatory bodies such as SIDBI, NABARD, NHB, Exim Bank, SEBI, उनके बारे में भी आपको पता होने चाहिए। So basically ये यूनिट कुछ खास नहीं है, बहुत जल्दी हो सकता है। Primary and secondary markets, different types of primary and secondary markets are forex, money, bond, equity. ये भी आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं। देन देयर आर सम जनरल टॉपिक्स लाइक रिस्क मैनेजमेंट, डेरिवेटिव्स, वेरी इंपॉर्टेंट, यूनियन बजट, इन्फ्लेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये जो टॉपिक है, दीज 5 टॉपिक्स आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव। रेस्ट आपका जो ये टॉपिक है, ऑल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स, corporate governance, all these topics are important from descriptive point of view. Even fintech is important from descriptive point of view, ठीक है। बाकी इस सिलेबस को आप जो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहां से PDF डाउनलोड करके ये सिलेबस आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है गाइस। सो थैंक यू, आई होप दिस इंफॉर्मेशन वुड be useful to you and you will have much better clarity about RBI Grade B in case you didn't know about these things. तो चलिए जल्दी से हमारे YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा in case you find the video valuable and press the bell icon so that you keep getting the regular updates. Have a nice day. Bye bye.